Hello, folks. Today I'm here for giving the session of system design. Basically, we are designing notification system. But before designing the notification system, we need to understand what is the system design. So let's check what is the system design. System design is basically designing and structuring software component to create system that perform optimally at scales. As the definition said, in the system design, we are basically combining the large components of the system to work together at scale. Why system design matters? Present, present, PPT को वो कहाँ से होता F11 दबा दे तू सीधा। है F11 से नहीं होगा ये। ये देख तू हम्म, फ्रॉम फर्स्ट ऑप्शन। so why system design matters? System design matters because of user scalability, performance optimization, reliability in uptime, future-proof scaling, and failure prevention. The thing is that what is the scalability? When we design a system, we always think about scalability. Scalability is basically system that seamlessly accommodate growing user base without performance degradation. Basically, when we build application, then it's not scalable if we build it very from scratch. So this user scalability point of view is very matters in the system design. Performance optimization, reliability, this is all the point of view. And types of system design, basically there are two types of system design: high level and low level. High level is the big picture view, as I said previously, defining the overall architecture, major component, how they communicate with each other. But the low level design is entirely different from the high level design. In this, we are specifying internal structure, algorithms, data models, and code decision, how internally code working, basically in the low level design. High level design establish fundamental architecture of the system. It's about making strategic decision that shapes the entire solution. Its overall architecture defines the system structure, framework, and decision patterns. Major component identify key services, database, and external integration, data flow, and text selection. In the low level design, basically it talks about classes and modules, how API interacts, database schema, and internal logics. Now we move on to the main topic, notification system. First of all, we need to understand what is exactly notification system. Notification system is a critical infrastructure component that delivers timely alert and messages to user across the multiple channels. It acts as the communication backbone between your application and its users, ensuring important information reaches that reliability and promptly. There are different type of notifications like email, SMS, push notification, in-app notification. So why notifications are important? Because of user awareness. Keep users informed about important events and updates and changes in real time. Engagement driver boost user interactions and retentions by delivering timely, relevant content. Alerts and reminders and business criticals also important aspects of notification system. So we will designing notification system. So we move forward to the architecture. I prepared a structure of the notification system. This is the very basic thing that we all know. Here is a user. Here is our application. Application can be any application like social media, Instagram, whatever we are using. Assume we are logging into application Instagram. Then we get an email notification. You has been logged in. This is the flow. But how can we design this flow? So start from this very basic architecture. For the sign up, we get post API like name and email or whatever field we are getting. Then data should be saved in DB. Then we can trigger
send email function to send a mail to Gmail. It is the basic architecture of notification system. But the thing is that it is scalable or not. So have you an idea about it is scalable or not? Can this handle 1 million users at a time? About 1 million users, what do you mean by 1 million users? As you want to send one email to 1 million users at No, one no. time? Or... You have to think like big system designs like assume 1 million user concurrently use the same application and log in at the same time. Okay. Hmm. Yes, concurrently. This is yes, yes, exactly. When we hit the Postman API, then the data should be saved in DB. It may take 0.5 second or whatever it is. Then we are triggering send email function. This email synchronously go to Gmail API. Then it send email. This should be very lengthy process. Assume it can handle a one or two hundreds of users, but there is a limitation of Gmail. Like Gmail has limitation of 30 email per second. We can only send 30 email per second via Gmail server, and we have sign up 1000 user at a time. Then how can it handle it? That's why it's not scalable. 30 emails per second are synchronous or asynchronous? And do this optimized architecture of notification system. In this, basically what we are doing, we are hitting the same API, saving the database in DB, but instead of triggering the synchronous API, synchronous notification to via Gmail or whatever service we are using, we are triggering event to different server. When we are triggering event to different server, it goes to different server like it is a 300 port. Where is my cursor? Assume this server is running on 3000. Okay, and this is running on 4000. We hit the Postman API, save the database and DB, and user have to redirect. And we have triggering the second send request to email server. Means user does not, बेसिकली इसमें क्या होता है, यूजर अड़ा नहीं कहीं पे भी. यूजर जैसे ही हिट किया पोस्टमैन एपीआई, डाटा सेव हो गया एंड यूजर रिडायरेक्ट कर गया होम पेज में. लेकिन उसमें क्या हो रहा था, यूजर को वेट करना पड़ रहा था जब तक एपीआई का रिस्पॉन्स नहीं आया था. सो इसमें जैसे ही डाटाबेस में डाटा सेव हुआ, हमने एक ट्रिगर कर दिया इवेंट जो कि जाएगा ईमेल सर्वर पे. ईमेल सर्वर इंटरेक्ट करेगा जीमेल सर्वर पे. इसमें बेसिकली इम्प्रूवमेंट ये हुई कि हाँ, इसमें इम्प्रूवमेंट क्या हुई, ये हुई कि इसमें बेसिकली हो ये रहा था कि जैसे ही हमने 1000 ईमेल डाल दी, तो एपीआई हमारी फट गई, सेंड ईमेल फट गया, तो यूज़र लॉगिन ही नहीं कर पाएंगे अपनी एप्लीकेशन में. हमारी एपीआई ही क्रैश हो गई. लेकिन इसमें क्या हो रहा है, एपीआई क्रैश नहीं हो रही. हज़ार के हज़ार यूज़र्स जो हैं लॉगिन कर लेंगे, लेकिन नोटिफिकेशन हज़ार के हज़ार को नहीं मिलेगी. नोटिफिकेशन सिर्फ 30 को जाएगी कि यू हैव लॉगिन. दिस इज द सिंपल इम्प्रूवमेंट इन दिस. ठीक है, इतना समझ आया? हाँ, हाँ, हाँ. हाँ, ये एक एम होगा. नहीं, नहीं. इसमें बेसिकली क्या हो रहा है, हमने सबसे पहले एक ही एपीआई राउट बनाया पोस्ट साइन अप का. इसमें अवेट कर रहे हैं डाटाबेस में, पहले डाटा सेव होगा, फिर हम अवेट कर रहे हैं कि सेंड ईमेल
में जाएगा, लेकिन जब सेंड ईमेल में गया और वो हमने कॉन्करेंटली बैकएंड से हमें रिक्वेस्ट आ रही है तो ये सर्वर एपीआई ही क्रैश हो जाएगी। लेकिन इसमें ये साइन कोई भी लॉगिन नहीं कर पाएगा। हाँ, एपीआई क्रैश हुई ना, लेकिन हम रिस्पॉन्स सेंड ही ना कर पाए ना लॉगिन को। यू है रीडायरेक्ट करने की, जहाँ पर नीचे रीडायरेक्ट करते हैं ना, रिस्पॉन्स सेंड करते हैं, वो कर ही नहीं पाए क्योंकि यहीं से हमारा ब्रेक हो गया। ये इसके साथ टाइटली कपल्ड थी ना। लेकिन ये क्या हो रहा है, इसमें जैसे ही डाटाबेस में सेव हुआ तो इसको हमने लॉगिन करके भेज दिया। ये है ना, ये दूसरा सर्वर है, ये इससे लूजली कपल्ड है, इसका और इसके बीच में कोई रिलेशन नहीं है। जैसे डाटाबेस में सेव हुआ डाटा, हमने दूसरा सर्वर पे कॉल कर दी, वो जैसे मर्जी अपना टास्क हैंडल करे। ये जरूरी नहीं है सर्वर ही हो सकता है, ये कोई क्यू भी हो सकती है, या कोई थर्ड पार्टी माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर भी हो सकता है। इट कैन बी एनीथिंग। लेकिन ये भी उतना स्केलेबल नहीं है। सो हमें इसे और स्केलेबल बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, उसके लिए हमारा ये मेन आर्किटेक्चर आया। इसमें हम क्या कर रहे हैं, हमने सेम वही पोस्टमैन से साइन अप हिट किया, फिर डाटाबेस में गए, डाटाबेस में डाटा सेव होगा। इस बार हमने क्या किया, क्यू सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दिया, जिसमें क्या होता है, जैसे यूज़र ने लॉगिन किया, 1000 यूज़र आए, 1000 के 1000 ने यहाँ पे अपना साइन अप किया, 1000 के 1000 का डाटा स्टोर हो गया। फिर 1000 के 1000 को जो नोटिफिकेशन जानी थी, उनकी ईमेल हमने क्यू में डाल दी। क्यू में ऑपरेशन जो होता है ऑर्डर ऑफ 1 में होता है, तो इसमें कोई भी क्रैशिंग का इशू नहीं आएगा। ऑर्डर ऑफ 1 में हम इनक्यू कर सकते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में। सो यहाँ पे हमने 1000 ईमेल डाल दी। फिर क्या हुआ, हमने एक वर्कर लगाया हुआ है यहाँ पे, ईमेल वर्कर। ये कॉन्स्टेंटली लिसन करता है क्यू को, ये क्यू से एक एक करके नोटिफिकेशन उठाता है और इस जीमेल सर्वर को सेंड करता है। यहाँ से उठाएगा, यहाँ पर जीमेल को सेंड करेगा। सो हम इसे ऐसे करके प्रोसेस कर रहे हैं। अब आपका इसमें क्वेश्चन होगा, हाउ कैन वी हैंडल मिलियंस ऑफ डाटा। जीमेल की लिमिट तो 30 है। हाँ हाँ, जो जीमेल वर्कर है, यहाँ पे हम रेट लिमिटिंग लगा देंगे ना। हाँ हाँ हाँ। लेकिन 1 मिलियन, ये तो मैंने 1 मिलियन के लिए नहीं बनाया है। अगर आपको 1 मिलियन के लिए बनाना है, उसके लिए थोड़ा सा हम इसको क्या कर सकते हैं, मल्टीपल क्यूज होती हैं, बीच में लोड बैलेंसर लगते हैं, वो जो कि डिवाइड करते हैं कौन सी क्यू में कितना लोड जाएगा। हाँ, आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। तो बेसिकली हमने यहाँ पे डाल दिया, मल्टीपल नोटिफिकेशन यहाँ पे आ गई। हमने यहाँ पे रेट लिमिट लगा दी, यहाँ पे 1000 हो या 2000 हो, हमने यहाँ से उठानी उतनी है जितनी हमारा जीमेल प्रोसेस कर सकता है। जीमेल अगर हमारा 30 प्रोसेस कर सकता है, हम यहाँ पर 20 की रेट लिमिट डाल देंगे। हम थोड़ा सा एज लेके चलते हैं, तो यहाँ पर बस 20 आई, तो हम इसको एक एक करके 20 सेंड कर रहे हैं। तो ये हमारा एक स्केलेबल आर्किटेक्चर बन सकता है। लेकिन इसमें भी भाई हम और मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, लाइक जैसे कि आपका क्वेश्चन होगा, ये जो आपके जीमेल सर्विस है वैसे तो क्रैश नहीं होती, हमेशा के लिए क्रैश हो गई, चल ही नहीं रही, तो हमारे जो मैसेजेस हैं वो लॉस्ट हो जाएंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, क्यू में एक सिस्टम होता है रीट्राई मैकेनिज्म। जैसे ही कि हमने जीमेल में अपना नोटिफिकेशन गया, हमारा जीमेल सर्विस डाउन थी, वो वापस सर्विस पे आई ईमेल वर्कर में, वो फिर हमने क्यू में डाल दी। तो वो जब तक सेंड नहीं हो जाएगा तब तक हमारा लूप में चलता रहेगा। वी कैन ऑल्सो टेक अ रेट लिमिट, लाइक हम बता सकते हैं उसको कितना रीट्राई करना है, 1 बार करना है, 2 बार करना है, 3 बार करना है। तो ये है हमारा एक सिंपल सा सिस्टम डिज़ाइन ऑफ नोटिफिकेशन सिस्टम। इसको और आप और भी स्केलेबल बना सकते हो, लाइक जैसे अमेजोन तो एसक्यूएस वगैरह यूज़ करता है। हाँ ठीक है। बेसिकली जो ईमेल वर्कर है ना, एक्नॉलेजमेंट करता है। ईमेल वर्कर ने इसको नोटिफिकेशन हमने हमारे सेंड की,
जब इस जीमेल सर्विस ने हमारे एंड यूज़र को ईमेल सेंड कर दी तो ये एक्नॉलेज करता है कि हमने सेंड की है। अगर नहीं करी तो वो बताता भी है कि हमने नहीं की है। तो जैसे इसको एक्नॉलेजमेंट आती है तो वही वाले नोटिफिकेशन को उठाता है, फिर से क्यू में डाल देता है। बेसिकली जो लॉस्ट मैसेज होते हैं उनके लिए हम अलग से क्यू यूज़ करते हैं, DLF, डेड लेट क्यू। हम ये वाली क्यू नहीं यूज़ करते उसके लिए। एनी अदर क्वेश्चंस? अभिषेक, रेट लिमिटिंग क्या है? और रेट लिमिटिंग से पर यूजर के लिए तो कैसे इंप्लीमेंट करेगा, ये बता दे। पर यूज़र के लिए करनी है क्यों है? इसमें तो एक यूज़र का होगा नहीं, मल्टीपल यूज़र्स का होगा ना। 1000 लोगों ने लॉगिन किया तो 1000 यहाँ पे आ गई नोटिफिकेशन। तो 1000 की 1000 तो हमने भेजनी नहीं है, चाहे एक यूज़र की हो चाहे 1000 यूज़र। वैसे तो 1000 यूज़र की होंगी इसमें। हम यहाँ पे रेट लिमिट लगाएंगे, हाँ। ये किसी की भी हो, डज नॉट मैटर। यहाँ से 25 जाएंगी। जैसे तूने जो बोला क्या हुआ? हाँ हाँ, मैं बोल रहा हूँ कि जैसे तूने बोला था रीट्राई वाला, कि रीट्राई का मैकेनिज्म होता है एक। हाँ हाँ, तो मल्टीपल लक्ष्य तेरी आवाज़ नहीं आ रही। कैसे इंश्योर पैरेंटलिज्म? हेलो हाँ, हेलो हेलो। हाँ हाँ, हाँ, तो तूने बोला था ना रीट्राई मैकेनिज्म का, कि जैसे ईमेल रीट्राई मैकेनिज्म होता है। तो उसमें हाँ जैसे हाँ, रीट्राई मैकेनिज्म में ऐसा होता है कि मल्टीपल सर वो लगा रखे होंगे प्रोवाइडर्स, कि ईमेल, आउटलुक, ऐसे। जैसे कि मैंने भी एक मेरा प्रोजेक्ट बनाया था, तो उसमें नोटिफिकेशन के लिए एक ट्विलियो की एपीआई लगाई थी, एक दूसरी लगाई थी। तो उसके अंदर तू रेट लिमिटिंग को कैसे पर यूजर के लिए स्केल करेगा, कि जैसे इस प्रोवाइडर के लिए ये रेट लिमिटिंग है, इसके लिए ये ऐसा। मेरा क्वेश्चन अभी दिमाग में है मेरे ये। पर यूज़र के लिए हाँ नहीं। नोटिफिकेशन सिस्टम में हम यूज़र बेस तो कुछ होता ही नहीं ना। आपने अज्यूम किया होगा कि जब हम फ्लिपकार्ट पे कुछ ऑर्डर करते हैं या फिर आपको हाँ नोटिफिकेशन आती है फ्लिपकार्ट में कि आज सेल है, तो आपके जो बगल में साइड में बैठा होता है उसको किसी और टाइम पे आती है, 1 घंटे पहले, और आपको 1 घंटे बाद आती है। तो इसमें यूज़र का तो हाँ, कोई रोल ही नहीं होता है। ठीक है। तो जैसे कि तेरे को, जैसे कोई ऑर्डर प्लेस हो गया, उसका नोटिफिकेशन जैसे हो रहा है, तो उसमें वो तो यूजर के बेस पे है ना, कि इस यूजर का हाँ ये हाँ ऑर्डर है, उसने अभी प्लेस किया हाँ, है, तो तो उसमें उसको ये अभी। होता है ना कि एक टाइम पे मल्टीपल यूजर्स ने एक ही टाइम पे ऑर्डर प्लेस किया होता है। तो वो जितने हाँ। भी लोगों ने एक कंकरेंटली यूजर ऑर्डर प्लेस किया होता है वो सारे क्यू में आ जाते हैं, ओके। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के बेसिस पे। हम्म, तो उसी हिसाब से फिर यहाँ पे प्रोसेस हो जाता है नोटिफिकेशन का। जो कि ठीक वो है। होता है, आपको पता ही होगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के बेसिस पे प्रोसेस करता है नोटिफिकेशन या किसी और चीज़ को। हम्म, तो जिसका पहले आ गया, जैसे हमारा उसमें होता है टिकटिंग सिस्टम में होता है, तत्काल के टिकट नहीं बुक कराते हैं, हाँ। ये बिल्कुल वही है। जिसने पहले दबा दिया उसको मिल गया। तो जिस यूज़र ने पहले ऑर्डर दबाया होगा उसको पहले नोटिफिकेशन जाएगी। वही सिस्टम है। ओके। इसमें एक क्वेश्चन और बन सकता है कि ये हमने सिस्टम तो डिज़ाइन कर लिया, इसका हम बहुत सारा कोड भी लिख दिया, तो हमने साइन अप के लिए ये लिख दिया है, लेकिन अगर हमारी रिक्वायरमेंट है कि हमें लॉगिन पे भी नोटिफिकेशन भेजनी है, तो उसके लिए भी हमें यही रेप्लिकेट करना पड़ेगा दोबारा से सारा कोड। और चलो लॉगिन के लिए तो रीयूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमें इन ऐप नोटिफिकेशन भेजनी है, हमें ईमेल सेंड ही नहीं करनी। तो उसके लिए फिर से हम नई एपीआई लिखेंगे और नया कोड लिखेंगे। तो क्या आप लोगों को पता है इसके लिए हम क्या सिंपल चीज़ क्या यूज़ कर सकते हैं जिससे हमें अलग अलग कोड ना लिखना पड़े? माय क्वेश्चन इज दैट कि हम लोगों ने साइन अप के लिए फ्लो बना लिया है, साइन अप के लिए सारा कोड लिख दिया है, और लॉगिन के लिए भी हम ईमेल सेंड करना चाहते हैं।
तो लॉगिन के लिए भी हम बेसिकली ईमेल सेंड करना चाहते हैं, साइन अप के लिए कर ही रहे हैं, तो क्या हमें साइन अप के लिए दोबारा से ये कोड लिखना चाहिए या हम इसे रीयूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू यू? हाँ हाँ, हम साइन अप में नोटिफिकेशन भेज रहे हैं, यूजर ने साइन अप किया, लॉगिन पे नहीं भेज रहे हैं, लेकिन हमें लॉगिन पे भी भेजना है, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें यही यूज़ करना चाहिए, अलग से करना चाहिए कोड? हाँ, यही कर सकते हैं, लेकिन हमें इन ऐप नोटिफिकेशन भेजनी है अगर बिजनेस रिक्वायरमेंट हो तो। तो वही मैं कह रहा हूँ कि यही मेरा कहने का मतलब है, ये नोटिफिकेशन सिस्टम मैंने जीमेल का समझाया, लेकिन ये सबके लिए वही सेम होगा स्केलेबल बनाने के लिए। लेकिन तो अगर इन ऐप नोटिफिकेशन भेजनी है तो उसके ऊपर तो आपकी कोई जीमेल की लिमिट आएगी नहीं, तो उसके ऊपर तो हम्म, आपकी सिर्फ रिसोर्स लिमिट आ जाएगी। तो हाँ हमें हाँ, तो लिमिट्स चेंज होंगी, हाँ, लेकिन बैकएंड का जो आर्किटेक्चर है वो सेम ही रहेगा। लिमिट्स एंड लिमिटेशन मतलब 20% आर्किटेक्चर चेंज होगा आपका, लेकिन जो मेजर बैकएंड आर्किटेक्चर है वो सेम ही रहता है। ओके। क्या हैक हो गया? हम्म, नहीं, चेक्स होते हैं। हम्म, नहीं नहीं, मैंने यहाँ आर्किटेक्चर में चेक्स नहीं बनाए, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे चेक्स होते हैं। इनक्यू करने से पहले हम बहुत सारे चेक्स लगा सकते हैं, लाइक अभी मैंने रिसेंट में प्रोजेक्ट में लगाया था। इनक्यू करने से पहले बेसिकली की होती है, यहाँ पे डायरेक्ट इनक्यू नहीं होता, बेसिकली रेडिस वगैरह यूज़ होता है। उसमें जैसे ही हमने डाटाबेस में स्टोर किया, तो हम एक की टाइप भेजते हैं रेडिस में, वो रेडिस से यहाँ पे क्यू पे इनक्यू में उठाते हैं। वो दोनों जब मैच करती है तभी हम नोटिफिकेशन सेंड करते हैं। ऐसे करके कुछ आर्किटेक्चर होता है, तो कोई भी आके नहीं सेंड कर सकता इसमें। हाँ हाँ, हम पब सब में तो बेसिकली वो होता है ना, हम ब्रॉडकास्ट टाइप कर देते हैं कि जिसको हमने ब्रॉडकास्ट कर दिया, हमारे पास इवेंट आया, ईमेल आई, हमने ब्रॉडकास्ट कर दिया, और जिसको भी उसकी नीड है वो उठा ले, चाहे वो साइन अप वाले फ्लो को नीड है तो वो उठा लेगा, लॉगिन वाले को नीड है वो उठा लेगा, या रेस्ट फ्रेंड एपीआई कोई नाम होगी उस वो उठाना होगा वो उठा लेगा। वो तो एक ब्रॉडकास्ट टाइप है, लेकिन यहाँ पे एक जो सिक्योरिटी वाली जो आपने चीज़ बोली है, वो की लगी होती है, जब तक वो की इनक्रिप्ट होकर मैच नहीं करेगी। क्यू में भी बेसिकली वो होता है ना, जैसे यहाँ पे इवेंट अकर हुआ, तो ये की जनरेट किया, यहाँ पे एक यहाँ पे रिक्वेस्ट की होती है, यहाँ पे रिस्पॉन्स की होती है, जब ये दोनों मैच होती हैं ना, तभी ये क्यू के अंदर जाता है, उसके बिना जाता ही नहीं। हम्म, हाँ, कि उसने जब वहाँ पे फंक्शन कॉल हुआ, गिट पुल किया, कोड चला, वो 10 मतलब 1000 मेल्स एचआर को पुश चलेगी, पुश होगी सेम मेल। एचआर को 10,000 मेल उसने पुश कर दी। हाँ, पुश होगी। हम्म, हम्म, तो ये पूरा सिस्टम में फ्लॉ नहीं आ गया कि अगर इफ यू आर सेंडिंग सेम मेल टू सेम पर्सन, कहीं ना कहीं ये चीज पहले ही क्यू से बाहर हो जानी चाहिए, ये क्यू में आएगी तो नहीं, फंक्शन डिटेक्ट करके बाहर जो निकाल दे उस चीज को। 10,000 मेल एचआर को गई, वो सेम मेल थी या अलग अलग मेल थी? सेम मेल टू सेम रिसीवर फ्रॉम सेम सेंडर। ये कैसे गई? 10,000 मेल कैसे जा सकती है किसी यूजर को? उसने कोई कोड में गड़बड़ की होगी। तो इट्स द सेम आर्किटेक्चर यू आर यूजिंग, तो हम्म 10,000 मेल क्यू में इकट्ठी होती गई। जब क्यू का हम्म, अगला फंक्शन कॉल हुआ, उसने सारी की सारी पुश कर दी आगे। अच्छा अच्छा, वो लोग ना वो यूज करते हैं, क्रॉन जॉब वगैरह यूज करते हैं ना। हम्म
ठीक है, कहाँ गया मेरा फ्लो? वो लोग बेसिकली क्या यूज़ करते हैं, डाटाबेस में सेव हुआ है पता नहीं, वो सारी मेल उन्होंने सेंड कर दी क्राउन जॉब में। क्राउन जॉब क्या करता है, एक वो होता है फंक्शन जो कि स्पेसिफिक टाइम में चलता है, तो वो उसने वहाँ से फैच किया होगा और सेंड कर दिया होगा। लेकिन क्यू में ऐसा नहीं होता। क्यू का आर्किटेक्चर मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा। यहाँ पे डायग्राम नहीं आ रही वो वाली। चलो लेट्स लीव इट टू अनदर डिस्कशन नेक्स्ट फ्राइडे। उसमें बेसिकली क्या होता है, जब तक की मैच नहीं होती तब तक वो आगे नहीं जाता। उसकी डायग्राम मुझे मिल नहीं रही भी। ठीक है। और एक चीज इम्प्रूव कर सकते हो तो, मतलब जब व्हेन यू आर रीडिंग या प्रेजेंटिंग पीपीटी ना, या तो नोट्स लिख ले, लग उसके अंदर ऑप्शन आते हैं नोट्स लिखने का प्रेजेंटर को, कि वो मतलब डू नॉट रीड द सेम जो लिखा हो पीपीटी में। ठीक है। मुझे एक चीज बताओ, अगर मान लो एक रीट्राई की हमने, एक ईमेल डाली और वो सेंड नहीं हुई, जीमेल ने उसका रिस्पॉन्स नेगेटिव भेज दिया, तो अब क्या करोगे? उसको रीट्राई करोगे या उसको क्यू में फिर से बैक में पुश कर दोगे? हमने आपकी वॉइस वैसे आई थी, हमने सेंड की उसको और जीमेल ने उसे एक्नॉलेज नहीं किया, ये कहना चाहते हो? उसका रिस्पॉन्स नेगेटिव आया कि वो सेंड नहीं हुई है अभी, ठीक है। हाँ। जीमेल की एपीआई से कोई प्रॉब्लम आ गई तो वो सेंड नहीं हुई। अब आप उसको रीट्राई करोगे या फिर उसको क्यू में बैक पुश कर दोगे? हाँ, रीट्राई करेंगे ना उसे। जब एक बार वो सेंड नहीं होता तो रीट्राई करेंगे। तो अगर वो 1000 बार सेंड नहीं हो रही तो 1000 बार हम रीट्राई करते रहेंगे? नहीं, उसमें लिमिट होती है ना कि हमने कितनी बार रीट्राई करना है। हम अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हैं, 3 बार, 4 बार, 10 बार। अगर 10 बार रीट्राई की लिमिट है और वो खत्म हो गई है, तो उसके बाद वो डिस्कार्ड होगी या क्यू में फिर से पीछे पुश हो जाएगी? क्योंकि ईमेल भेजनी भी जरूरी है, हम डिलीट भी नहीं कर सकते उसको। हाँ, तो उसके लिए हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो उसको उसी वक्त डिस्कार्ड कर दो या फिर उसे दूसरी क्यू होती है डीएलएफ नाम की, उसमें डाल दो। और वो आपको किसी जब 10 बार आपने रीट्राई कर दिया वो ईमेल तब भी नहीं जा रही, तो उसके बाद आपके पास 2 ऑप्शन होंगे, या तो उसको उसी वक्त डिस्कार्ड कर दो या फिर उसे कहीं दूसरी क्यू में डाल के सेव कर लो। डीएलएफ या कुछ समथिंग लाइक दैट ऐसा नाम होता है उसका, डेट लेट क्यू। तो उसमें जब आपने डाला, उस क्यू में जो भी चीज़ जाती है वो आपको सेव करनी होती है। उसके लिए डिफरेंट मैकेनिज्म होते हैं, आपने कैसे सेव करना चाहते हो, आपने अपने डाटाबेस में करनी है या कहीं और। तो ये है आपके पास ऑप्शन इन सब चीज़ों के लिए। ओके यार मेरा भी एक क्वेश्चन है अभिषेक, जैसे कि तुम अपने में लिंक्डइन पे या इंस्टाग्राम पे कोई पोस्ट करी, तो उस पे जब नई पोस्ट करते तो उस पे लाइक्स आते हैं, तो लाइक अभी अपने पास नोटिफिकेशन आता है कि लाइक योर पिक्चर, 1-2 बार ऐसे आते हैं और उसके बाद ऐसे हो जाते हैं कि लक्ष्य प्लस 99 अदर्स लाइक योर पिक्चर। तो ऐसे प्लस 99 ये क्या मतलब, क्या रेडिस में की बना के स्टोर करता है, कैसे ये कैसे सेव होते हैं, ये बताओ थोड़ा। नहीं, आप कहना चाहते हो जैसे सबसे पहले नोटिफिकेशन आती है लक्ष्य लाइक्ड योर लिंक्डइन पोस्ट, बाद में आती है लक्ष्य प्लस 99 लाइक्ड योर लिंक्डइन पोस्ट ना। हाँ, तो ये क्या की पेयर बन जाता है, कैसे होता है ये किसका क्या आर्किटेक्चर है? नहीं, ये तो सिंपल सी चीज है ना। लक्ष्य मतलब नाम तो नहीं, उसका ही आता है ना। इसका देख ऐसा है कि जैसे कि मैंने तूने अपलोड की और तेरे पास लाइक नोटिफिकेशन आने चालू हो गई, तेरे पास अगर 100 नोटिफिकेशन आएंगे तो तू ऐप को डिलीट कर देगा या नोटिफिकेशन बंद कर देगा उसके,
पर तेरे पास ऐसा नहीं होता है, तूने पोस्ट की तो उसके बाद थोड़ी देर बाद ऐसा आ जाएगा +99 अदर, +60 अदर, तेरे को हर एक यूजर का नोटिफिकेशन नहीं आएगा। तो इसके हाँ, अंदर तो वो वो क्या यूज करते उन हैं? लोगों ने कुछ ऐसा मैकेनिज्म लगाया होगा कि जब इतने लाइक्स हो जाएं तभी उसको नोटिफिकेशन शो करो। जैसे कि अभी पहला लाइक आया तो नोटिफिकेशन शो कर दिया, उसके बाद जब 20 30 40 हुए तो तुझे नोटिफिकेशन ही शो हुआ। जब जैसे ही 60 हुए, उनका क्राइटेरिया मैच हो गया, तो वहां पे नोटिफिकेशन शो कर दिया कि इसने और +60 बंदों ने तेरी नोटिफिकेशन को लाइक किया, पोस्ट को। हम्म, हम्म, सो उन्होंने इंटरनली अपना लिंक्डइन वालों ने क्या किया होगा ये तो हमें भी नहीं सर्वर पता। सर्वर फटने से बचाना है ना, ये तो ऐप लेवल पे लिखा होगा उन्होंने हम्म। कि अगर इतनी हो जाए तो उसके बाद थोड़ा डिले के बाद पुश करने लग जाओ। अगर तू सोच 200 नोटिफिकेशन के लिए तुझे भेज रहे हैं, यूजर्स कितने हैं टोटल? 200 नोटिफिकेशन आ रहे हैं तो मैं डिलीट कर दूंगा उस ऐप को सबसे पहले, क्योंकि इतने नोटिफिकेशन एग्जैक्टली। फोन ही मेरा हैंग हो तो जाएगा। वो क्या करते हैं, इनिशियल 9 ऐसे से 9 या 10 लेते हैं, उसके बाद वो प्लस करके थोड़ा टाइम बाद भेजता है कि ये ले डाटा लिया तेरे, इतना हो गया। या तू हम्म, इंस्टाग्राम चलाएगा, तुझे टाइम हो गया, जाके दोबारा देख तू, हाँ इंस्टा खोल ले तू। हाँ।